Farmers reject the government's proposal. जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। Talks hit a complete stalemate. सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। Trust deficit at it. Now, from the clarion call of Chalo Delhi, it's come now to Gherao Delhi. How did we actually get here? The farmers today said that the proposal which was sent in the morning by the government was a farce. They said it was an insult to farmers all across the country. They said they're still open to more proposals, but right now the Kisan Kranti is only going to escalate. It's only going to peak. What is the government going to do? And what was the proposal that was sent by the government? Because the government said it was willing to meet the farmers halfway. Was the proposal actually meeting the farmers halfway, or did it fall short? And is it the farmers that are being unreasonable? Which one is it? I want to take you through on what have been the assurances by the government. The government has, what the government offered the farmers in the proposal, that amendment in farm laws will be given. There will be a written assurance on MSP, on procurement, same tax rate for APMC, free market, farmers' courts for dispute, resolution, registration, verification for traders must, and farmers won't lose land if contractors default on loans. The government will also take back the anti-stubble burning ordinance. The FIRs and cases against farmers, especially during the time of the agitation, would be completely dropped. This was what the proposal was. If it hasn't made sense to you, we're going to cut across to a BJP spokesperson later who's going to actually break it down for us, because the farmer says you've really done nothing. What you offered us yesterday, you've pretty much given the same proposal today, which really is an insult to them. So we'll go across to the BJP spokesperson to actually break it down on the proposal that was rejected by the farmers today. But first up, I want to cut across to Rahul Srivastav, our national affairs editor, because what's really happened, viewers, now is the government is in a catch-22. The government would go back and try and see if it could send another proposal, but the farmers have drawn that line in the sand, Rahul, where they say now that it's no longer Chalo Delhi, it's Gherao Delhi. The numbers will peak, the agitation will peak, and the government will need to relent. Preeti, the government is searching deeper in its pockets. The farmers, by rejecting the proposals from the government, has pushed the government back to the drawing board. What actually it means is that if the government had a strategy vis-a-vis the negotiations with the farm unions, the farm unions, it seems, also had a strategy. What has happened in the last 1 week at least is that from seeking clarifications, providing objections, asking the government to give proposals, the farm unions have brought the government to a point where in black and white what is available are a few amendments to the laws that were created by this government, while the farmers have steadfastly held that they want the repealing of the bill. So in public domain, what is there in black and white is are only these amendments and promises that the government has made. No firm commitment as far as the main demands of the farm unions are concerned. And that is why the farm unions feel that they are in a position of advantage right now. If they were not escalating their protests till now, they have already announced that they are going to do that. And how the government gets out of this situation becomes much more tricky now. Why? Because after having gone so far, having proposed the maximum that it could have done and stated that this is the ceiling to what we can offer, the government cannot really, government can't really say, let's go back to talking once again. And since there will be no talking, that vacuum of conversation between the government attempt to create a point of convergence will help the farmers, farm unions to escalate their protests. I think the government is terribly caught in a bind. All right, appreciate you joining us, Rahul. Let's cut across right now to the Shingu border where my colleague Moshmi joins us. Moshmi, break it down for us. Starting tomorrow, how is this agitation going to peak right now? Preeti, if you see
that Singhu border has been the nerve point, the nerve center of this entire agitation, and it is from here that the farm leaders have clearly laid out the schedule as far as their revolt or their intensifying their agitation is concerned. And primarily, starting from right now, they are planning to junk Reliance and Jio SIMs as a mark of protest. And then on the 12th, there will be a blockage of the Delhi-Jaipur highway, and that is symbolically very important, because remember, already many lifelines to Delhi have already been choked, and thereafter, the agitation would in fact intensify on the 14th as well, with various farm units of various states in fact protesting at the headquarters of the farm unions, and that's very important, because this protest they are taking from Delhi to the nook and corners of the country. And remember that first Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, all the Hindi hinterland states have joined the chorus, and now they are planning to pan it out from north to south and east to west. So importantly, more people as they join this agitation, more headache it will create for the government. And even as we walk and talk, there are people who are coming out, handing over water, handing over food, and that's the spirit of this entire protest, Preeti. It's got a big, very, very huge heart, and that has struck a very, very sensitive chord with the entire country. Well, not just the country, definitely the government. What is the government going to do? The government says will not take back the laws. Now what? How will the government deal with this agitation, which would be peaking in days to come? Let's appreciate you joining us, Maushmi. Let's cut across to our panel right now. I have Master Shivraj Singh, President, Bharatiya Kisan Union. I have Iqbal Singh Lalpura, National Spokesperson, BJP, Ashok Balian, Farm Leader. Cutting across to Mr. Lalpura. लालपुरा जी, हिंदी में बात करेंगे क्योंकि फार्मर्स का डिबेट है, काफ़ी फार्मर्स हैं जो हिंदी में बेटर डिबेट करते हैं इस पे। तो लालपुरा जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जो प्रपोजल भेजा था बहुत लोगों को समझ नहीं आया है, क्योंकि सरकार कह रही है कि उन्होंने तो काफ़ी वॉक किया, उन्होंने काफ़ी इसमें अकोमोडेट किया है फार्मर्स को। फार्मर्स कह रहे हैं कि ये मजाक है, ये इंसल्ट है फार्मर्स पे। ज़रा बताएंगे कल से लेके आज जो प्रपोजल भेजा था उसमें क्या नया था? किसान भाइयों ने जो एजिटेशन शुरू किया था वो इस बात पे था कि एमएसपी जारी रहनी चाहिए और मंडियों में खरीद रहनी चाहिए। ये दो मेन मुद्दे थे जिनको लेके सितंबर में ये एजिटेशन शुरू हुई थी, और सरकार ने ये 20 पेज का लेटर जो यूनियन होम मिनिस्टर जी के दफ्तर से किसान भाइयों के लिए बातचीत के लिए भेजा गया है, उसमें ये कहा गया है कि एमएसपी जारी रहेगी। इसके बारे में जो रिटन एग्रीमेंट है वो भी हो, जो जहां भी कानूनी तौर पे लिख की जरूरत है वो लिख दिया जाएगा जी। उसके बाद जो मंडियां हैं वो जारी रहेंगी। प्राइवेट मंडी में आएगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट उससे टैक्स ले सकती है, और कोई भी ऐसी सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं जी। मतलब व्हाटएवर द पॉइंट दे रेज्ड हैव बीन। सबसे बड़ा पॉइंट लालपुरा साहब ये था, सबसे बड़ा पॉइंट लालपुरा साहब ये था, जो एमएसपी है, प्राइवेट प्लेयर जो भी आए, जो भी कॉर्पोरेट आए, वो एमएसपी के नीचे खरीद ना कर पाए। ये तो नहीं था? नहीं, ये तो था कि एमएसपी जो इस समय चालू रहनी चाहिए, और एमएसपी जो दूसरा प्राइवेट आदमी आएगा वो केवल अपना पैन कार्ड दिखा के खरीद सकता है। वो पैन कार्ड देख के ऐसा ना हो, अब उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी नोटिफिकेशन होगी। ये पूरी 20 पेज हैं जिसमें हर चीज को एड्रेस करने की कोशिश की गई। चलिए हमारे साथ बने रहिए। मास्टर शिवराज सिंह जी, आपने सुना जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने तो बोला है कि जो आपने मांगा था सरकार ने कर दिया, आप अभी भी डटे हुए हैं। अरे भैया, अंधे को क्या चाहिए? अंधे को 2 आंख चाहिए। हम इनसे सिर्फ 2 आंख ये मांग रहे हैं कि कोई भी खरीदे, ए खरीदे, बी खरीदे, सी खरीदे, डी खरीदे, सिर्फ एमएसपी को अमली जामा कानून का पहना दो। एमएसपी सबसे नीचे का मूल्य होता है। हम कोई एमआरपी नहीं मांग रहे, हम मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम मिनिमम मांग रहे हैं
मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे कोई सेल करेगा, खरीदेगा, तो उसको जो है कानूनी अपराध माना जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा होगा लूट का। जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसान लुटता चला आया है। मक्का लुट गई, बाजरा लुट गया, कपास लुट गया, दलहन लुट गया, तिलहन लुट गया, धान लुट गया, गन्ना लुट गया, सब कुछ लुट गया। कहीं भी उसको उसका रेट नहीं मिल पाता है। किसान सिर्फ इतना मांग रहा है भाई उसकी आत्महत्या बंद हो जाए, वो कर्ज में ना डूबा रहे, वो थोड़ा सा सुख की चैन की नींद पा ले। सिर्फ एक बात कह रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रही, या तो ये अनपढ़ है या हम अनपढ़ है, या तो हम इनकी भाषा नहीं समझते, ये कहीं इंग्लैंड से आए, या इन्होंने हमको कहीं विदेश से 2 रोटी में मोल ले लिया है। हम भारत माता के लाल है ही नहीं, हम सौतेली माँ के बेटे हैं। हमको इतनी घिनौनी नजर से देखा जा रहा है। आज अगर हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। एमएसपी से नीचे कोई खरीद करे जी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। एमएसपी से ऊपर कितना ही खरीदा है, एमएसपी से नीचे ना खरीदे। ये कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। हम कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, खरीद ना हो, खरीद ना हो। एमएसपी से ऊपर कोई कितना ही खरीदे, इतना अंतर चल रहा है। ये कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, हम कह रहे हैं गारंटी कानून बना दो, इससे नीचे खरीद ना हो। उस एमएसपी का हम क्या करेंगे मैडम, जो हमारे हाथ ही नहीं लगती। जी सिंह साहब, अब हमारे क्या करेंगे, एमएसपी घोषित हो जाती है और हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके पूरे भारत में एमएसपी किसानों को नहीं मिल पाती। उसका अन्न लूट लिया जाता है, धान लूट लिया जाता है, गेहूं लूट लिया जाता है। आपने मास्टर शिवराज जी, आपने सही पॉइंट रेज किया है, वही मैंने पूछा था लालपुरा साहब से। अब लालपुरा साहब आप ही बता दीजिए, कौन है अनपढ़, सरकार अनपढ़ है कि किसान अनपढ़ है? वो आपसे यही बोल रहे हैं कि भाई जो एमएसपी है चाहे कोई भी हो उसके नीचे खरीद ना कर पाए। आप कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी पर आप उसको लीगल नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे थे कि एमएसपी के बारे में लिख के दो। अभी तक 1964 से किसी ने लिख के नहीं दिया। आप वो ड्राफ्ट पढ़ लीजिए, उसमें अगर भी अभी भी कोई बात है तो बातचीत के द्वारा हल हो सकती है। आपकी जो मांग हमारे साथ हो रही है अब कि आया है लेटर, तो हम तो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। ये 3 कानून, हम तो 2 कदम आगे गए हैं, 1 कदम आगे जाने के और भी तैयार हैं। लेकिन जब आदमी पहले जो बातें कही थी, हम उस बातों का सभी का निदान किया। अब ये कहते हैं माई वे और हाईवे। तो मैं कह रहा हूँ, या तो आप पढ़े लिखे नहीं है या हम पढ़े लिखे नहीं है, या तो हम बेवकूफ है बिल्कुल। नहीं, किसान सारे बेवकूफ है बिल्कुल। मैं भी किसान हूँ। आप ऐसे देखो, उससे नीचे खरीदना हो। ये हिंदी नहीं आती किसी को, हिंदी पढ़ा हुआ नहीं है सरकार, अंग्रेजी जानती है सरकार। हम हिंदी में बोल रहे हैं, एमएसपी से नीचे खरीदना हो, एमएसपी से नीचे खरीदना हो, एमएसपी से नीचे खरीदना हो। एमएसपी सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उससे नीचे कोई मूल्य नहीं होता। अगर हमें सबसे नीचे का मूल्य भी नहीं मिलेगा तो क्या हम सौतेली माँ के बेटे हैं? क्या विदेश से हमको 2 रोटी में खरीद के लाए हो? क्या हम भारत माता के लाल नहीं है? चलिए बने रहिए, हमने सरकार को वोट नहीं दिया। नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने एक वैलिड पॉइंट रेज किया है। अशोक बाल्यान जी को भी मैं लाना चाहूंगी इसमें। अशोक बाल्यान जी, ये जो वार्तालाप हो रही है, ये जो डिस्कशन हो रहा है, इसमें जरा बताइए। अब सरकार कह रही है कि पहले जो आपने मांगा हमने दे दिया, अब आप नई डिमांड बोल रहे हैं कि एमएसपी को लीगलाइज करो। क्या ये नई डिमांड है या शुरू से किसान एक ही चीज बोल रहा है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो ये किसान आंदोलन है, इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। ये 3 कृषि के सुधार बिल जो कानून का रूप में आज सामने आए हैं, वो एक अलग चीज है। और ये बात बिल्कुल सच है कि देश में एमएसपी से नीचे किसान की फसल। मैं ये कह रहा हूँ, इन बिलों को भाड़ में डाल दो, इन बिलों में सालों में आग लगा दो। हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी पर क्यों नहीं बोलते हो आप? जी मैं वो रेस करूंगी, रुकिए आप हमारे साथ। अशोक बाल्यान जी को बोलने दीजिए। ठीक है, रही एमएसपी की के किसान की फसलें एमएसपी से नीचे बिकती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया था। अर्थात इस देश में चीनी का कोई भी सौदा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर खरीदे चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर खरीदे, उससे नीचे नहीं होगा। हम केंद्र सरकार, किसान भाई अपनी मांग को ठीक तरह से कभी कभी रखने में या समझाने में
असफल हो जाते हैं, लेकिन उनका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो किसानों की भावनाओं को समझे, वो किसानों की इस भावना को समझे कि उसकी सच में उसकी अशोक फसल बालियान जी, आपका वीडियो लिंक चला गया है, हम आपके पास वापस आएंगे, बट आई विल गो बैक टू मिस्टर लालपुरा। लालपुरा साहब, देखिए, आपने दोनों किसानों की बात सुन ली है। बार बार जो 10 किसानों ने आज बोला, जो 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं सर। अब जो यहां पर बैठे मास्टर शिवराज सिंह भी एक ही चीज कह रहे हैं, आप एमएसपी को लीगलाइज कर दीजिए कि कोई भी आके उसके नीचे ना खरीद कर पाए। अब वो आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि जो बिल है वो फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट और एमएसपी एक साथ तो जा नहीं सकते, तो अगर आप एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे तो आपका बिल गिर जाएगा। नहीं, बिल नहीं गिरेगा। हम तो चाहते हैं कि किसान को 2 रास्ते मिले। एक तो वो एमएसपी पे बेच सकता है, जिसकी हम गारंटी लेते हैं, जो पंजाब में, हरियाणा में जहां जहां हुआ वहां आगे के लिए भी होगा, गवर्नमेंट परचेज होगी। उससे ज्यादा कीमत पे कोई खरीदता है तो किसान बेच भी सकता है। जो आगे उस पर पाबंदी थी कि वो नहीं बेच सकता, तो हमने तो दोनों रास्ते दे दिए हैं और प्रोटेक्शन भी दे दिए हैं। आगे ये बात थी तुम 10 रास्ते दे दो, हम मना नहीं कर रहे। 50 रास्ते दे दो। शिवराज सिंह जी, इनको बोलने दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, इनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलिए बोलिए लालपुरा साहब, बोलिए। एसडीएम के पास, एसडीएम तक ही जा सकते हैं। हमने कहा सिविल कोर्ट में भी जाइए। आपके पास जो प्रपोजल आई है, जो जो क्वेश्चन आपने रेज किए हैं, हमने सारे को एड्रेस करने की कोशिश की। लालपुरा साहब, मैं ये जो आपने भी बोला है, मैं एक बार शिवराज सिंह से पूछना चाहूंगी। शिवराज सिंह जी से यही पूछना चाहूंगी। शिवराज सिंह जी, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। नाक रगड़ के आपसे विनती है, सिर्फ एमएसपी को अमली जामा पहना दो कानून का। ये आपसे हाथ जोड़ करके, नाक रगड़ के, पैर पकड़ के, जैसे चाहो वैसे आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है देश का अन्नदाता। चलिए शिवराज सिंह जी, आप, क्योंकि बहुत सारे और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार कह रही है दोनों रास्ते हैं, हम एमएसपी तो खरीद करेंगे, आप बाहर भी बेच सकते हैं। अरे ये बात तो हमने 20 बार सुन ली भाई, इतने हम समझदार हैं, हम भी गेहूं की रोटी खा रहे हैं आजकल। किसान इतना पागल, हम तो ये कह रहे हैं 10 रास्ते दे दो, लेकिन एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, ये कह रहे हैं। क्या इनकी नानी मर जाएगी इसे बनाने में? लालपुरा साहब, आप बोलना चाहेंगे कुछ? ना तो हमारी नानी मरेगी इससे। ये भाषा जी गांव में अच्छी लगती है, टेलीविजन पे शायद अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा। बाकी आपने, हम तो गांव के आदमी है, गांव की बात करेंगे भाई। आप बात सुनिए ना, आप जैसी बातें करते हो, मैं भी पंजाब का किसान हूँ, गांव में रहता हूँ। 10 बातें मुझे भी मालूम है जो गांव में लोग बोलते हैं। आप भाषा तो रखिए ना सभ्य। बाकी बात है जो हमने प्रपोजल जहां जहां आपने रेस किया था, आपने मेरी बेइज्जती सुन लो, मेरी बेइज्जती सुन लो। जो आप इसको, आप जो चीजें आपने मांगी थी, उसमें से अगर कुछ बाकी रहती है, आप बात कीजिए, उसमें भी बात हो सकती है। अब तो जो चीजें आपने मांगी, हमने सभी को हाँ कर दिया। चलिए, सरकार कह रही है शिवराज सिंह जी कि ऐसा नहीं है कि अब एक और प्रपोजल नहीं आएगा, वो मानेंगे, क्या पता कल आपकी बात मान ले। बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बार बार आरती उतारेंगे इनकी, सदा इन्हीं को वोट देंगे, नहीं तो नोटा दबाएंगे, फिर हम नोटा दबाएंगे, नहीं तो इनकी आरती उतारेंगे, एमएसपी को गारंटी कानून बना देते हैं। तो चलिए, अगर अब देखते हैं दैट प्रपोजल इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और नॉट। बालियान जी, आप हमारे साथ जुड़ गए, एक बार बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, 10 सेकंड, फिर मुझे शो क्लोज करना है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी की वाकई समस्या है, तो इसलिए सरकार को एमएसपी के बजाय न्यूनतम बिक्री मूल्य को तय करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे नहीं पता कि ये किसने मांग रखी कि मंडी से बाहर भी टैक्स लगे। व्यापारी का रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, लेकिन मंडी से बाहर टैक्स लगे तो वो तो उसका सीधा का सीधा नुकसान किसान को जाएगा। तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि मंडी से बाहर व्यापार करने पर टैक्स लगे। तो इसलिए मंडी के एक रूपता लाने के लिए कृषि को संविधान की संवर्धित सूची में ला जाए, ताकि मंडी में केंद्र सरकार कानून बना के पूरे देश में ऑलराइट, ओके। Thank you all for joining us. It does seem right now that the trust deficit is only but peaking. Will things relent in terms of, will things get better? Will the farmers relent? It doesn't seem so. They're on an all-out offensive. What will the government do? We'll only know in days to come. Thank you for watching.